قدیم فارس، ایک بھولی ہوئی سلطنت کی مکمل کہانی۔ زیادہ تر لوگ قدیم فارس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ در حقیقت ہم میں سے اکثر نے فارس کو فلموں اور پاپ کلچر کے ذریعے جانا ہے، نہ کہ اسکول کی کتابوں سے۔ روم، یونان، یہاں تک کہ مصر کی تہذیبوں کو خوب پذیرائی ملی، مگر مشرق میں کیا ہو رہا تھا، وہ تاریخ کا حصہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قدیم فارس کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اپنے عروج پر اس سلطنت کے تحت دنیا کی تقریباً نصف آبادی رہتی تھی۔ فارس کی تاریخ کے ذرائع ہمارے پاس۔ فارس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر 3 یونانی مورخین ہیروڈوٹس، زینوفون اور ٹیئس کی تحریروں سے آتی ہیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے، یونانی فارس کے حریف تھے۔ ان کی لکھی ہوئی معلومات میں تعصب یا غلطیاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ فارس کے بادشاہوں کے نام بھی ہمیں یونانی زبان کے ذریعے پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر سائرس اصل میں کوروش تھا، ڈاریس اصل میں دارا دراؤ تھا، زرکسیز اصل میں خشایار شاہ کیارا تھا۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس صرف یونانی ذرائع ہی نہیں بلکہ اور بھی اہم دستاویزات موجود ہیں۔ ان میں سب سے اہم پرسیپولس کے شاہی آرکائیو سے ملی ہزاروں مٹی کی تختیاں ہیں، جن پر معیشت سے متعلق ریکارڈز درج ہیں۔ ان سے ہمیں فارسی سلطنت کی اصل ساخت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ لوگ اپنے قریبی رشتہ دار میڈز کے ساتھ وسطی ایشیا، آج کا قازقستان اور ازبکستان سے ہجرت کر کے میسوپوٹیمیا کی جانب آئے۔ وہ اپنے آپ کو آریانا کہتے تھے، جسے آج کا لفظ ایران ماخوذ ہے۔ ان کی زبان میں پارس کا مطلب تھا جنگجو یا طاقتور انسان۔ یہ لوگ چرواہے خانہ بدوش تھے، مگر جس انداز میں وہ نقل مکانی کرتے تھے اسے عمودی خانہ بدوشی کہا جاتا ہے، یعنی موسم کے مطابق وہ گرمیوں میں پہاڑی وادیوں اور سردیوں میں نشیبی علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ ان کی زندگی سادہ، سخت مزاج، کم خوراک، شراب سے اجتناب اور گھر سواری میں مہارت پر مبنی تھی۔ وہ چوڑی شلواریں پہنتے اور نوکیلی ٹوپیاں ٹیاراز استعمال کرتے۔ وہ جسمانی طور پر لمبے اور ہلکی رنگت والے تھے اور میسوپوٹیمیا کے مقامی لوگوں سے مختلف دکھائی دیتے تھے۔ کوروش کا عروج 7ویں صدی قبل مسیح میں فارسیوں نے ایلامی شہر انان فتح کیا، جس کے بعد تمام فارسی بادشاہوں نے اپنے لقب میں بادشاہ انان لکھنا شروع کیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں کوروش دوم سائرس II، جو بعد میں کوروش اعظم کہلایا، اقتدار میں آیا۔ اس وقت فارسی میڈی سلطنت کے تابع تھے، مگر کوروش نے میڈی بادشاہ آستیاگس کے خلاف بغاوت کی۔ کئی طاقتور میدی قبائل کوروش کے ساتھ مل گئے اور فیصلہ کن جنگ میں کوروش نے کامیابی حاصل کی۔ اس نے پاسرگاد شہر کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور پھر تیزی سے مہمات کا آغاز کیا۔ پارتھیا، آرمینیا، کیپاڈوشیا، ایلام، لیڈیا، ایونیا جیسے خطے فتح کیے۔ کچھ علاقے جیسے کلیسیا اور ہریا از خود اطاعت گزار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے نیو بابل سلطنت پر توجہ دی۔ روایت کے مطابق بابلی بادشاہ نابو نیدوس دیوتا مردوک کو ناراض کر دیا تھا اور مردوک نے کوروش کو بابل پر قبضہ کرنے کو کہا۔ حقیقت میں جب کوروش کی فوج بابل پہنچی، دروازے کھل گئے اور اشرافیہ نے کوروش کا استقبال کیا۔ کوروش کی نرم حکمرانی۔ کوروش نہ صرف عظیم فاتح تھا بلکہ ایک زیرک سیاستدان بھی تھا۔ وہ محکوم اقوام سے رواداری کا سلوک کرتا، بشرطے کہ وہ مزاحمت نہ کرے۔ ہارنے والے بادشاہوں کو معاف کر دیتا اور بعض کو سلطنت میں عہدے بھی دے دیتا۔ مقامی انتظامیہ کو برقرار رکھتا، جس سے بغاوت کا امکان کم ہو جاتا۔ کئی قوموں کو واپس ان کے وطن بھیج دیا، جیسے یہودیوں کو، جنہیں اس نے یروشالم میں معبد دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے امداد بھی دی،
क्योंकि फारसी सल्तनत में फारसी नस्ल की तादाद बहुत कम थी, सिर्फ जीना गुरना के करीब। इसलिए कोरोश ने जबरदस्ती के बजाय बर्दाश्त, ताउन और मकामी खुद मुख्तारी पर मबनी निज़ाम अपनाया। कोरोश ने सल्तनत के शुमाली सरहदी इलाकों को सकियाई कबाइल से महफूज बनाने की कोशिश की, मगर एक लड़ाई में शहीद हो गया। इसके बाद उसका बेटा कंबोजिया तख्त पर आया। उसने कई बगावतों को दबाया और फिर मिस्र पर हमला किया। उसने मेम्फिस शहर पर कब्जा किया, फिरौन को कैद किया और मिस्र और लीबिया को सल्तनत में शामिल कर लिया। इसका अगला हदफ करताज और कोश था, मगर कोश में सामान की किल्लत के बायस मुहिम नाकाम रही। करताज की मुहिम फिनिकियों के इनकार के बायस रोक दी गई। इसी दौरान बाबिल में बगावत हुई। कंबोजिया इसे दबाने गया, मगर रास्ते में बीमार होकर मर गया। तख्त पर उसका भाई आना था, मगर एक शख्स दारियूश ने दावा किया कि जो शख्स बादशाह बना है वो एक जालसाज है, एक मॉग मैजूस जिसका नाम गोमाता है। दारियूश ने तख्त पर कब्जा कर लिया और खुद को कोरोश के परदादा अखिमनीस का वारिस करार दिया। उससे सल्तनत का अखिमनी खानदान शुरू हुआ। दारियूश के इस्लाहात। दारियूश ने सल्तनत को सूबों सट्रापीज में तकसीम किया। हर सूबे पर गवर्नर सैट्राप मुकर्रर किए। सक्कों का निजाम मुतारफ कराया। सोने का ड्रेक और चांदी का सगलूस। शाही सड़कें बनवाईं, खास तौर पर रॉयल रोड जो लीडिया से शोश तक जाती थी। डॉक का निजाम बनाया, जहां पैगाम सवारों के जरिए चंद दिनों में पूरी सल्तनत में पहुंच जाता। सुएज नहर का पहला वर्जन बनाया, जो नील के डेल्टा को बहरे अहमर से जोड़ता था। पर्सपोलिस को दारुल हुकूमत बनाया और शानदार इमारत तामीर की, जैसे अपादाना हॉल। फारसी फौज की रेड की हड्डी अमरे सिपाही थे, एक खुसूसी दस्ता जो भारी असलहा से लेस पेशावर प्यादा फौज पर मुश्तमिल था। ये सिपाही जर्रा बख्तर पहनते और नेज़ों, तलवारों और तीरों कमान से लेस होते। इस यूनिट की तादाद हमेशा 10,000 सिपाहियों पर कायम रहती थी। इनकी सफ़ों में शामिल होने के लिए सख्त मुकाबला होता था। ताहम अमर का नाम गालिबन फारसी लफ्ज़ का गलत तर्जुमा है, जिसका असल मतलब साथी या रफीक था, मगर हेरोडोट्स की वजह से ये नाम तारीख में मुस्तकिल तौर पर राइज हो गया। फारसी फौज की हल्की प्यादा फौज में तीरंदाज और गलील बरदार शामिल थे। इनके साथ साथ फारसी भारी घड़सवार, नेज़ा बरदार और हल्के घड़सवार, नेज़ा फेंकने वाले भी मैदान में उतारते थे। तनाज़े की नौइयत और इलाके के मुताबिक फारसी सल्तनत मुख्तलिफ कौमों से मददगार फौजी दस्ते भी बुलाती थी। फारसियों को अक्सर आतिश परस्त कहा जाता है, मगर ये पूरी तरह दुरुस्त नहीं। वो आग की पूजा नहीं करते थे। इनका मजहब था जरतश्त, मत की इब्तिदाई शक्ल, जिसे मज़दाइयत कहा जाता है। जदीद जरतश्त मत के बरक्स ये शक्ल मुकम्मल तौहीदी नहीं थी। फारसी दूसरे खुदाओं के वजूद से इनकार नहीं करते थे, वो सिर्फ आहूरा मज़दा को सबसे बरतर मानते थे। आहूरा मज़दा को खुदाओं का खुदा कहा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फारसी बादशाह को बादशाहों का बादशाह या शाहिनशाह कहा जाता था। मज़दाइयत में दूसरे इलाही किरदार भी शामिल थे। मित्रा रोशनी और सच्चाई का देवता, अहरिमन बदी की रूह, अनाहिता जरखेजी की देवी वगैरह। इस अकीदे को हेनोथिज्म कहा जाता है, यानी कई खुदाओं को तस्लीम करना मगर एक को सब पर फौकियत देना। मज़दाइयत फारसी और कुछ मीडी अशराफिया का मजहब था। फारसियों ने कभी अपनी मजहब दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। बाबलियों का मरदूक, यहूदियों का यहूवा, मिस्रियों का आमून और यूनानियों का ज़ईस, सबको फारसी हुक्मरानी में मुकाम हासिल था। फैसलों का मुनफरिद तरीका। फैसला साजी के हवाले से फारसियों की एक दिलचस्प रिवायत थी। इनके ईमान के मुताबिक शराब के नशे में इंसान सिर्फ सच बोलता है,
चुनांचे जब कोई बड़ा फैसला दरपेश होता, पहले शराब नोशी के दौरान बातचीत करते, अगले दिन होश में आकर दोबारा गौर करते। अगर फैसला तब भी दुरुस्त महसूस होता तो नाफिज कर देते। बसूरत दीगर पूरी मुशावरत दोबारा होती। यूनानी फारसी जंगों का आगाज। यूनानी फारसी जंगें उस वक्त शुरू हुई जब एउनिया के यूनानी कॉलोनियों ने बगावत की। ये 499 क़िब्ल मसीह में हुआ। एयुनियाई यूनानियों को एथेंस और एजियन जज़ायर के यूनानियों की हिमायत हासिल थी। न सिर्फ उन्होंने फारसी हुकूमत का तख्ता उल्टा, बल्कि लिडिया के दारुल हुकूमत सार्डीज पर भी हमला कर दिया। यूनानियों ने शहर को लूटा और अनाहिता का मंदिर भी जला डाला। ये बगावत 7 साल जारी रही, जिसे आखिरकार फारसियों ने कुचल दिया। उसके बाद फारसियों ने यूनान के कई शहर रियासतों को पैगाम भेजा। एक रिवायती अलामती मुतालिबा, मिट्टी और पानी यानी इताअत की दरखास्त। कई पुलिसें, शहर रियासतें ने ये मान लिया, लेकिन 2 बड़ी रियासतें एथेंस और स्पार्टा ने इनकार कर दिया। स्पार्टा में सफीरों को कुएं में फेंक दिया गया और कहा गया, यही लो अपनी मिट्टी और पानी। एथेंस में सफीरों को मुकदमा चलाकर सजाए मौत दे दी गई। ये अमल फारसियों के लिए इंतहाई तौहीन आमेज था और उन्होंने इंतकामी जंगी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। फारसी फौज ने यूनान के एक साहिली मैदान में उतराई की, जो माराथोन शहर के करीब वाक़ था। उनका मंसूबा था कि वहां से एथेंस पर चढ़ाई की जाए, लेकिन जब उन्होंने कदम रखा तो देखा कि यूनानी फौज पहले से मौजूद है। एथेंस को हमले की इत्तला मिल चुकी थी और उन्होंने अपने इत्तेहादियों को जमा करके फारसियों को रोकने के लिए पेशकदमी की। अगरचे फारसी फौज तादाद में यूनानियों से 2 गुना ज्यादा थी, मगर वो एक नामुसाइद मकाम पर थी। माराथोन का मैदान ढलवानी था, यूनानी ऊंचाई पर खड़े थे। फारसियों को ऊपर चढ़कर हमला करना पड़ता। फारसी कमांडर आर्ताफेरेंस ने फौरी हमला न करने का फैसला किया, क्योंकि पोजीशन खराब थी। दूसरी तरफ यूनानी जनरल मिल्टियाडाइस भी जंग में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो स्पार्टा से मदद का इंतजार कर रहा था। आखिरकार आर्ताफेरेंस को एक चालाक ख्याल आया, अगर एथेंस की फौज माराथोन में है तो शहर खाली होगा। उसने हुक्म दिया कि फौज पीछे हटे और जहाज़ों के जरिए शहर पर हमला करे जब वो गैर महफूज हो। इसी लम्हे मिल्टियाडाइस ने हमला करने का फैसला किया। उसने अचानक यलगार का हुक्म दिया। फारसी फौज, जो रुखसती की तैयारी में मसरूफ थी, अचानक हमले से बौखला गई। यूनानी हमला इतना शदीद था कि फारसियों की सफ़ें टूट गईं और फौज में अफरा तफरी फैल गई। अगरचे बहुत से फारसी सिपाही अपने जहाज़ों तक पहुंचने और फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन नुकसान तबाहकुन था। तकरीबन 7,000 नुख्बा सिपाही और दर्जनों जहाज ज़ाया हो गए। दूसरी तरफ यूनानियों का जानी नुकसान इंतहाई कम था, सिर्फ तकरीबन 150 सिपाही। लेकिन इस शिकस्त के बावजूद दारा अव्वल ने इंतकाम का इरादा तर्क न किया। अलबत्ता वो इस पर अमल न कर सका। पहले मिस्र में बगावत ने उसकी तवज्जो हटा दी और कुछ ही अरसे बाद उसकी वफात हो गई। दारा का जानशीन खशायर शाह ज़र्क्सीस बना, जिसने एक अजीम लश्कर जमा किया और खुश्की के रास्ते यूनान पर चढ़ाई का फैसला किया। यूनानी मुवर्रिखीन के मुताबिक इसकी फौज की तादाद 1 मिलियन थी। अगरचे ये मुबालगा आराई है, मगर जदीद अंदाजे बताते हैं कि फौज तकरीबन 2 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जो उस वक्त के लिहाज से एक बेमिसाल कुव्वत थी। यूनानियों ने फैसला किया कि वो थर्मो वैली की तंग घाटी में मुकाबला करेंगे, जो इस वक्त सिर्फ चंद दर्जन मीटर चौड़ी थी।
आम तासुर के बरक्स इस घाटी की हिफाजत सिर्फ मशहूर 300 स्पार्टर्स ने नहीं की, बल्कि यूनानी शहर रियासतों के हजारों दीगर सिपाही भी शरीक हुए। इसके बावजूद ये जंग यूनानी हार गए। उन्होंने 2 दिन तक फारसियों को रोके रखा, मगर तीसरे दिन मुहासरा का खतरा देखकर ज्यादातर यूनानी फौज पीछे हट गई। सिर्फ स्पार्टा के 300 सिपाहियों और चंद दीगर रजाकारों, यानी कल मिलाकर तकरीबन 500 अफराद ने रुकने का फैसला किया। इतनी बड़ी फारसी फौज के मुकाबले में वो घाटी को मजीद न रोक सके और इसी दिन के इख्तिताम तक सब मारे गए। उसके बाद फारसी फौज बगैर किसी मुजाहिमत के एथेंस पहुंच गई, लेकिन शहर खाली निकला। औरतों और बच्चों को पहले ही पेलोपोनीज मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि मर्दों ने समंदर के रास्ते फारसी बहरी बेड़े का सामना करने का मंसूबा बनाया। फारसी और यूनानी बहरी बेड़े का आमना सामना जजीरा सालामीस के करीब हुआ, जहां यूनानी फारसी जंगों की फैसला कुन बहरी जंग लड़ी गई। फारसियों को अददी बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उनके जहाज छोटे और हल्के थे। यूनानी बेड़ा ज्यादातर भारी ट्राइरिम जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने फारसी बेड़े को सालामीस और साहिल के दरमियान तंग आबनाए में घसीट लिया। जब फारसी अंदर दाखिल हुए तो उनका सबसे बड़ा हथियार चुस्ती और फिरती ज़ायल हो गया। यूनानियों के भारी जहाज़ों ने पूरी ताकत से हमला किया। फारसी बेड़ा टुकड़ों में बट गया। तकरीबन 1/3 जहाज तबाह हो गए और बाकी वहशत और बदहवासी में फरार हो गए। जब बहरी कुव्वत ख़त्म हो गई तो फारसी बड़ी फौज भी अपनी रसद से महरूम हो गई। उन्होंने एथेंस को जलाकर राख तो किया, मगर जल्द ही हेलेस्पोंट की तरफ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। ये पसपाई जल्द ही इंतशार में बदल गई। मजीद कई जंगें हुईं, ज़मीन पर भी, समंदर में भी, जिनमें ज़्यादातर यूनानियों की फतह हुई। आखिरकार फारसियों को सुलह पर मजबूर होना पड़ा। इसके तहत तमाम एजियन जज़ायर और एशिया माइनर के साहिली इलाके फारसी कंट्रोल से निकल गए। अगरचे वो जंग में शिकस्त खा चुके थे, फारसियों ने यूनान पर असरांदाज होने का ख्वाब तर्क नहीं किया। बस उन्होंने हिकमत अमली बदली। अब फौजी कुब्जे की जगह सकाफती असरात और रिश्वत पर इन्हिसार किया गया। यूनान के कई मारूफ शख्सियात, मसलन मशहूर खतीब डीमोस्थीनीज ने फारसी सोना कबूल किया ताकि मखसूस नजरियात या पॉलिसियों की हिमायत करें। मगर फारसी सल्तनत की तबाही यूनान से नहीं, बल्कि एक गैर मुतवक्के सिमत से आई। 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में मकदूनिया के बादशाह फिलिप दुव्वम ने यूनान को मुत्तहिद किया और अपना देरीना ख्वाब पूरा करने की तैयारी शुरू की, यानी फारसी सल्तनत पर हमला। लेकिन अचानक फिलिप कत्ल कर दिया गया। उसे उसके जाती मुहाफिज पाउसानियास ने छुरा मारा। कत्ल की असल वजह आज तक एक मुअम्मा है। कुछ का कहना है कि पाउसानियास फिलिप की बीवी से आशिक था। कुछ शक करते हैं कि फारसियों ने साजिश की, और कुछ ये भी कहते हैं कि शायद फिलिप का बेटा सिकंदर खुद मुलव्विस था। फिलिप मर गया और 18 साला सिकंदर ने इख्तिदार संभाला। उसे अपने बाप की मुकम्मल तैयार फौज विरसे में मिली और उसने वक्त जाया किए बगैर फारस पर चढ़ाई कर दी। अगले 13 साल में सिकंदर आजम ने हखामनिशी सल्तनत को तूफान की तरह रोन डाला और कभी शिकस्त न खाई। फारसियों के पास मकदूनिया की फाइलाइनक्स फौजी तश्कील का कोई जवाब न था, न ही सिकंदर के हैरत अंगेज अस्करी दिमाग और गैर मामूली खुशकिस्मती का। बार बार वो लड़ाई के सबसे खतरनाक मुकाम पर खुद शरीक हुआ, मगर हमेशा बमुश्किल जख्मी या सलामत बच निकला। 300 प्रुआंस पुबली मत तक तकरीबन 2 सदियों पर मुहीत हखामनिशी सल्तनत का खात्मा हो चुका था। बावजूद उसके फारसी जबान और सकाफत ने हिलीनिस्टिक, पार्थियाई
اور ساسانی دور میں برقرار رہ کر آج بھی اثر چھوڑا۔ آج بھی ایران میں فارسی زبان اور مذہبی روایات زندہ ہیں، اور زہراستری آج بھی کچھ کمیونٹیز میں پائی جاتی ہیں۔